great. Good to see that. Anybody else would like to share anything? हाँ, मेरे साथ हुआ हम। जी सर, आप ही का सुनना है अब तो। जी सर बोले। यतीश सर। आवाज आ रहा है? हेलो जी सर। हमने एक गैस स्टोव 4 बर्नर ऑर्डर किया था अपने किसी रिलेटिव के यहाँ से, जो हमें रक्षाबंधन को मिलने वाला था। अच्छा जी। उनके घर हम चांदनी चौक जाते, वहां से उठा लेते। हाँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह मैंने अपनी वाइफ को बोला था अच्छा बोलो, वो लिखो आज अच्छी खबर आएगी। मैंने भी लिखा। मतलब आज 3 बजे तक वो मेरे घर डिलीवर हो गया। वाव। और है ना, अभी गैस वाला भी वो आईजीएल को बोलना पड़ता है, फिर वो 1-2 दिन में आते हैं फिट करने। उसका नॉब बदलना पड़ता है आईजीएल के लिए, कन्वर्ट कर। वो आज ही कन्वर्ट करने वाले हैं। क्या बात है। उनको 2500 कम में भी मिला। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। Well, welcome Meenakshi. So magic is happening all over. And good evening, ma'am. Good evening. And अब आप राखी का खाना उसी पे बनाओगे फिर? हाँ जी, वो तो आज ही चालू हो जाएगा। आज ही चालू हो जाएगा, कल से तैयारी होगी। हम सोच रहे थे 6-7 तारीख तक चालू होगा वो। तो कितनी एक्साइटमेंट होती है जब घर में कोई ऐसी नई चीज आती है, तो यू आर सो एक्साइटेड कि चलो अब ऐसे बनाएंगे और ये करेंगे। इट्स रियली नाइस। गुड टू शेयर। Good evening, Sunanda. Good evening, Monica. Good evening. How are you? I'm good. Good. So you are the youngest person over here. You know that? Oh, really? I didn't know that. Youngest rock star of the Magic 30 group. No. अच्छा, मुझे पता नहीं था। देखो। Nobody can beat me. I am the youngest one, right, sir? I'm the youngest one. I got that. I wanted to say that she's the youngest girl, but आप तो boy हो ना? अब नितेश बोलेगा मैं भी बैठा हूँ। Okay, great. So actually, ma'am, we are all young at heart. So we are all young. Absolutely. Very good evening, Didi. Good evening, Jyoti. How are you? I'm good. Great. So again, the magical sessions are starting, and today is the 18th day. Good to see you all in good spirits, over here. And let's show the grateful heart. Let's create grateful heart by showing gratitude to our Hanumanji, who can create lots of miracles in our lives. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me this opportunity to live this beautiful day. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me these beautiful moments. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me this magical session, who are giving me lots of learnings where I can create miracles in my life. Thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for all the doctors, all the nurses, all the staff members who are taking care of the COVID patients. And we sprinkle magic dust to each and every hospital for their well-being. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me wonderful parents who took care of me. They protect me. They are giving me comfortable life. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me siblings. Many people, they don't have siblings, but I'm fortunate to have my siblings. I'm so blessed. Thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me teachers who can actually guide me to the right path, right way, at the right time. I'm so grateful to them. Thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me such beautiful house. I've got all facilities with me, all AC, refrigerator, cooker, and so many facilities, so many resources, which is making my life so comfortable,
Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me a wonderful health. I'm completely fit, active, strong, and healthy. Thank you, thank you, thank you. I'm so blessed. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me the failures, which are giving me lots of lessons and learnings. And using that, I am going ahead. Thank you, thank you, thank you, God. And thank you, universe. We are creating miracles in our lives with grace of your blessings, you know. We are getting unexpected amount of money in our lives. We are getting an expected amount of resources in our life. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe. Bless us all. Thank you, thank you, thank you. मैम मुझे कुछ पूछना था जी। मुझे लॉटरी की टिकट खरीदनी है, कहाँ से खरीद सकते हैं? ऑथेंटिसिटी किस जगह की है, कैसे खरीदे? मुझे नहीं पता कैसे जाना है खरीदने। लिंक कोई भेज सकता है या कैसे? आप यूनिवर्स से पूछो, आप यू विल गेट द गाइडेंस। कहाँ से आया? मुझे लॉटरी की टिकट ये कुछ नेट पे सर्च करो, क्योंकि लॉटरी की टिकट तो मैंने भी आज तक नहीं खरीदी है, मुझे मालूम नहीं है। बट हाँ, माय हस्बैंड ही गोज टू साउथ अफ्रीका, ही डज दैट, यू नो। तो वो कई बार मुझसे देखे क्या नंबर है, क्या है, क्या नहीं है। सो आई टेल हिम, तो एवरी डे उसका रिजल्ट आता है। हाँ, एवरी डे उसका रिजल्ट आता है। से पूछते हैं कि किन्नरी ने लॉटरी की टिकट। राइट, कल उन्होंने आई थिंक कुछ कह रही थी कि मैंने खरीदा है टिकट लॉटरी का, तो प्लीज हमें भी बताइए। बेसिकली लॉटरी की टिकट तभी लगेगी जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे। ठीक है, डन। ऐसे ही लॉटरी की टिकट नहीं लगेगी। तो ऐसे ही शिव जी और पार्वती जी घूम रहे थे, जैसे वो भ्रमण करते रहते हैं अपना मस्ती में आते हुए। ऐसे ही सावन के महीने में घूम रहे थे, तो एक जो है उपासक, वो बैठी हुई बोल रही थी कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा लो, मेरी 40 लाख की लॉटरी लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो। तो भ्रमण करते हुए जब वापस आ रहे थे, तो भी वो वहीं बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने बोला, देखो ये आज ने एक तो उपवास रखा हुआ है और सुबह से लेके शाम तक आपको कह रही है, तो कब से तो व्रत भी रख रही है, तो इसकी लॉटरी लगा दो। तो शिव जी बड़े मुस्कुरा के बोले, शिव जी कहते हैं पहले इसको लॉटरी की टिकट तो खरीद लेने दो, लॉटरी मांग रही है, लॉटरी की टिकट तो खरीदी नहीं है, सो लेट हर बाय लॉटरी की टिकट, उसके बाद देखेंगे। So we ask that we should become a multi-millionaire. We say we should become multi-billionaire. We should become Tata, Birla, you know, Ambani बन जाना चाहिए हमारे को। अरे बन तो जाना चाहिए। Show the gratitude of Ambani and show the gratitude of Tata, Birla. You will get it, everything, you know. Do the work, most importantly. That is the most important thing. There is no substitute. No substitute. I really don't understand this concept of lottery first of all. Actually इसमें भी एक ना वो होता है, मतलब probability होती है। कैसीनोज में कुछ लोग होते हैं ना, वो बार-बार जीतते हैं, तो उसका भी एक खेलने का तरीका होता है। Very true, very देखेंगे कभी उसको भी स्टडी करेंगे। नहीं, हम लोग लूडो खेलते थे, मतलब हमारी फैमिली, जैसे लॉकडाउन हुआ, अब जब कहीं ना जा सके ना आ सके और घर में ही सारे बैठे हुए, तो हाउ टू स्पेंड टाइम, यू नो, सो वी क्रिएटेड अ ग्रुप, यू नो, लूडो खेलते थे उसके अंदर। तो oh my God. और उसका हमने वो आईपीएल मैच बना दिया, लिटरली मैच, आईपीएल के रूल्स रेगुलेशंस, हमारी पूरी फैमिली जो है उसके अंदर पार्टनर्स के साथ, और वो सब पूरा आईपीएल मैच बन गया था हमारा। उसके हमने रिकॉर्डिंग्स भी करी, मतलब इट वाज रियल फन। तो उसके अंदर धीरे धीरे जब इतना खेलने लगे, समझ आ गया कि जब इसकी जो जीटीए यहाँ पहुंचेगी ना, अब इसका 6 आ जाएगा, अब पता चलने लग गया कि कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ लगनी। सो बिकॉज इट इज अ प्रोग्राम इन एनी केस, so you come to know the way how it is being programmed here, that way. तो पता चले, अच्छा ये अब तो ये तो गई, अब तो नहीं है। एक बंदा उसमें से ऐसा होता है जिसका 6 ही 6 आएगा, 6 ही 6 आएगा। अब हम यही प्रे करते थे, मैं तो मैजिक स्टोन लेके बैठ जाती थी, ये तो 6 वाला नंबर मुझे मिलेगा। so that way, so you can create magic in your life. Wonderful. The most लेकिन मोनिका, जो बोर्ड पे हम लोग ने लॉकडाउन में हमने भी करा, हमने ओलंपिक गेम्स रखे थे। अच्छा, आपने आईएलपी रखा था, हमने सारी आईपीएल लगा था, ओलंपिक। हमने क्या किया था, और क्या यही सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, तो हमने वो लूडो, हमारे पास बोर्ड्स थे सब रखे, बोर्ड, लूडो, मोनोपोली और चेस। तो ऐसा होता था कि
पहले प्लेयर लूडोज में आएंगे, फिर टीम्स बढ़ जाती थी, सेमी फिनाले हो गया, फिनाले में आओ चेस पे, चेस में जो जीता उसके बाद बिजनेस पे आओ, या इस तरह से हम लोग रोटेशन कर करके मतलब एवरीथिंग इज तो पूरा वो बना दिया था हमने। वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, गुड। So the most beautiful way to start and end a day is with a grateful heart. So this is what we need to do. So yesterday practice was किस-किसने मैजिक चेक बनाया? मैंने नहीं बनाया, मैं नहीं बना पाई। मैंने भी नहीं बनाया, मैं तो कल आई नहीं थी, मैंने भी नहीं बनाया, मैं आज बनाऊंगी। मैंने तो बिल्कुल ओरिजिनल बनाया है। I want everybody to make magic check because reason being it gets manifested. आपने लॉटरी की टिकट खरीदनी है, आप मैजिक चेक बना देते, लॉटरी वैसी लग जानी थी। मैंने बिल्कुल ओरिजिनल कलर, पेपर, ग्रेड वगैरह सब वही बनाए हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी। मैंने भी बनाया। मैंने भी नहीं बनाया, मैं कल बनाती हूँ। जिन्होंने बनाया है प्लीज, भैया उनके रिजल्ट्स आएंगे तो प्लीज मेक श्योर दैट those who have made it kindly show it to us. What is this? Please, I also want to see. Just क्यों यतीश सर ने तो भेजा था ग्रुप में, मैंने भेजा था अच्छा, वो, उसी को मैंने ना okay. कलर पेपर पे, थोड़ा मोटे पेपर पे प्रिंट करा दिया उसको। ठीक है, तो भेजा था। यतीश सर के तो पैसे आ रहे हैं बस। अच्छा, बस यही रास्ते में थोड़ा सा पार्किंग में रखे हुए, बस अभी हाँ सही कह रहे हो आप। पहुंच रहे बहुत जल्दी सर के पास। same with me. हाँ, फिर एक पार्टी अपने हाथ में खोल के रखिए कि the money is coming to my hands, or actually it is coming, you know, it is actually coming. It is coming to everybody's hands, you know, if you go ahead with it. So you had to make magic check, उसको amount fill करना था। अच्छा, मैं एक चीज की बहुत important एक बात share करना चाहती थी, because if you are filling up the amount, please fill up that what are you going to do with that amount. That is very very important. अब जैसे कल नीतू ने शेयर किया था कि उसने अपने हाउस के लिए यूज किया था, तो उसको उतना अमाउंट कम हो गया। और हाउस के लिए चाहिए था उसको, और घर के अंदर ही यूज हुआ है, बट जिसने पैसे देने थे उसने 25,000 कम करके दिए। तो दैट मीन्स दैट इज द बेनिफिट दैट शी गॉट, शी हैड टू पे, शी गॉट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सिमिलरली आपने बच्चे की फीस, एजुकेशन है, कितनी फीस है, और क्या लालच मत करना कि मैं इतने इकट्ठे रख लूं उसकी शादी तक और उसके डोली तक और उसके बच्चों तक, ऐसे कुछ मत करना। आप दोबारा मैजिक चेक बना सकते हो। सो प्लीज make authentic check which gives you a confidence, yes I have achieved this। वो अचीव करने के बाद उसके बाद आप एक और मैजिक चेक बनाओ, उसके बाद एक और बनाओ। किसने मना किया है, कौन रोक रहा है? मैजिक चेक तो अबंडेंस है, कहीं कहीं नहीं जाना, अबंडेंस कहीं जा रहा है ना, आप कहीं जा रहे हो ना मैजिक कहीं जा रहा है। सो इट इज हियर ओनली, सो मेक इट लॉजिकली, ऑथेंटिकली, दैट राइट। अब एंड देन यू हैव टू होल्ड द चेक एज कि ये अमाउंट आ गया है और ये वाले अमाउंट से मैं ये चीज खरीद रहा हूं, इसमें ये लगेगा, ये यू हैव टू विजुअलाइज इट। एंड उसको दिन में 2-3 बार करना था। अब अगर आज आप रात को बनाओगे, मेक श्योर कि कल आप उसको विजुअलाइज करो 2-3 बारी, और रोज दिन में 1 बारी तो करना ही है, ठीक है, एज इफ द अमाउंट इज कमिंग टू योर लाइफ। So see that check daily after receiving, replace with new amount। ये बात मैं दोबारा पढ़ती नहीं हूँ ना, इसलिए गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक। कल भी गलती थी, आज भी है। Replacement with new amount। So and then you had to do the magic stone। So अब जिसने चेक बनाया है, just I would like them to share what। एक बार मैम वो पुरानी वाली साइड करना, मैं उसकी फोटो खींच चेक बना लिया तूने? याद है भाई, एक्शन निकालने का, उसको बोलते 2 निकाल देगा, मेरा भी निकाल देगा। एक बार वो पहली वाली स्लाइड करना मैम, जिसमें होमवर्क दिया है, मैं एक बार फोटो खींच देती हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जी हाँ, लेकिन अभी फिर फोन में रह जाएगा ना, वो लैपटॉप में कौन लेगा स्क्रीन। Okay, now how many of you would like to share? Ma'am, I just wanted to tell you one more thing. See, actually I written in my diary, so I am expected, only 50K profit. Maybe for that only I got it today. Exactly written in the same amount, but I am expecting too much. अब तुम भगवान को कुछ नहीं कह सकते, यूनिवर्स को कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी गलती है। Just what I just see that daily whatever I written, I am very grateful to universe because I got 50K profit in intraday.
सही है, सही है. You demand, you ask as big as you can. वो वाला कोड याद आया? That's what, Sujata. If I would have waited, at least in a 1 hour, I would have got around be 3.5. thankful for what you got. Yeah, No, of then course. tomorrow you can get this much. Yeah, Don't of course, tell of her course. this. I'm very thankful for that. I'm just informing her. नहीं, मैं कह रही हूँ अपनी जो स्टेटमेंट है उसको रेक्टिफाई कर दो. देखो आपको भी आ जाएगा. Right. अपनी जो स्टेटमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो हमारे साथ भी शेयर करें. Advan, don't mind. What I'm trying to tell you is you have already told this word 3 times, and in this meeting 2 times you have said. So Yes, I'm yes. just telling that also. The number of times you tell, the word is producing energy. Right. So देखो मैडम ने बोल दिया. Please follow. sorry. Thank you. Okay, so today the chapter is the magical to-do list. That is a beautiful, chapter. और ये चैप्टर आपकी जिंदगी पलट देगा. लाइफ पलट देगा. कौन सा चैप्टर है? The magical to-do list. Okay. और मानवी, are you there? आज मैं रीड करती हूँ. I'm very excited for this topic. अच्छा, you want to do for this topic? Okay. Okay. So the world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. So आज मैंने वैसे मानवी का नाम लिख दिया था. You want to read तो you can read. मुझसे पूछ लीजिए. बुक ले ली. मैं अभी इस बुक खोलती हूँ. आप शेयर कर दो, मैं लैपटॉप से पढ़ूंगी. Can you see the book? Yes. आप पेज नंबर भी डाल सकते हो यहाँ पर, अपने आप आ जाता है. पता नहीं इसके अंदर ना कुछ और डिफरेंट सिस्टम होता है पेज का. पता नहीं. नहीं, ये जो आ रहा है ना, जो अपने आप चेंज हो रहा है. यहाँ पे टाइप करोगे अगर आपको पेज नंबर याद तो अपने आप आ जाएगा. उसको क्लिक करते हुए पेज नंबर आ गया. 18 है ना आज का. The magical to-do list. Yes. ओपन हो गया? Yes. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. Yes. Yeah. Really, when you think about it, the gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. The more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts,
you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them, or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it solved, it is getting even worse. The magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want to do something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, everyone please mute yourself. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and let the magic happen. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical do-to list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simple putting the things you want done on the magical to-do list. Remember, the law of attraction says like attracts like. That means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts problems. You have to be a magnet to solution, not a magnet to problem. Being grateful that you have solution and it has been resolved attracts the solution. To demonstrate how powerful this magic practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used to practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it. Or even if it had been stolen, she called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. You want to say something, ma'am? No. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including her all bank and credit cards, driver's license, cash, and her biggest concern was that her wallet contained no current contact information.
because she had been overseas for some time and she didn't have a publicly listed phone number. And with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning. And he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's name and called directory assistant. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistant ourselves several times after this happened. And the response every time was, sorry, there is no listing for that name. This is called the magic. Yes. All magic. Imagine. Kamal. Was it amazing, people? Yes. Yes. From 100 miles away, though the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use the magic in your life. Wow. Wow. Magic practice number 18. So the magical today list for today. Count your blessings. Yeah. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Create a list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time, imagine for that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute to each one of them, believing it is done,
and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. Thank you, thank you, thank you for creating such beautiful chapters. Such, you know, you today, you have got the power to make any task happen. But आपके पास power मिल गई है. The only thing is how you are going to use that. That is the most important point. Okay. So screen sharing. Thank you, Sujata, for creating this chapter for us. So here comes your name. Wow, क्या बात है, मैम की स्पीड अच्छी है. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay, the gratitude is found the moment we stop searching for more and start appreciating what we have. Madhu, this is for you. This is for you. Just be appreciative about whatever you got. Great. So what was there in the chapter was you write down day to day operations आपके होते हैं जो आप रोज चाहते हो कि आज मैं ये करूंगा, मुझे ये बिल पे कर. कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो रोज कहते हैं और रोज रह जाते हैं. तो आपने तसल्ली से एक बार बैठ के एक लिस्ट बनानी है. And when your gratitude power and law of attraction, they are together, it gives amazing results that way. So चाहे वो कैसे होगा, लोग घूमेंगे, circumstances होगा, events होगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. It will happen no matter what. आपने करना क्या है, आपने अपनी कॉपी के अंदर, और आप remember you have to write down magical to do लिस्ट, और अपर केस में लिखना है, आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है मैजिकल टू डैश डू लिस्ट, और आपने सारा लिस्ट डाल देनी है कि आपका क्या क्या काम है. यानी कि अब यूनिवर्स आपको कह रहा है आपके जितने पेंडिंग काम पड़े हैं, जितना आपका काम होना है, चाहे फ्यूचर का, चाहे करंट का, चाहे पीछे, सारा टू डू लिस्ट में डाल दो. अब आपके जब पेरेंट्स भी आते हैं ना, अच्छा तो ये क्या चाहिए, तो एक विश लिस्ट बना के दे दे हमारे को, हम तेरे को सब कुछ दे देंगे. तो यूनिवर्स इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू राइट डाउन व्हाट यू वांट इन लाइफ, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज बिजनेस, वेदर इट इज जॉब, वेदर इट इज एनीथिंग और इट इज हेल्थ. प्लीज पुट इट इन द टू डू लिस्ट कि मेरे को ये करना है. लिस्ट बन गई, जितने मर्जी 25, 30, 40, 50 जितने पॉइंट बनाने आप पूरे बना लो. आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए. पुट इट ऑन. देन यू चूज फर्स्ट 3. आपकी जो प्रायोरिटी की है ना, उन 3 को आप चूज करोगे और एक एक करके उनको विजुअलाइज करोगे. अरे वाह, ये प्रोग्राम, ये काम हो गया. कैसे हुआ ये नहीं बोलना, हो गया. और वो विजुअलाइज करना है कि काम हो गया, और आप नाच रहे हो, आप जंप कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, बट दैट इज डन. एंड देन यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज वंस. 2-3 बार आप वो विजुअलाइज करोगे. 1-1 मिनट की विजुअलाइजेशन जरूर होनी चाहिए. विजुअलाइजेशन इज लाइक दैट कि आप उस बंदे से बात कर रहे हो और वो हो रहा है, आपने क्या कपड़े पहने हैं, उसने क्या कपड़े पहने हैं, माहौल क्या है, कलर क्या है. व्हेन यू यूटिलाइज all your senses in any of the things gets manifested. तो अभी जैसे इसने शो बताया था कि अनलिस्टेड नंबर था, पता भी नहीं चला, लेकिन वॉलेट उसके पास पहुंच गया. मुझे याद है जब मैंने रेकी सीखी थी, तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं उनके पास गई थी, तो देयर वाज वन लेडी सिटिंग ओवर देयर. शी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस. वो क्या शेयर कर रही थी कि उनके इन-लॉज पठानकोट एरिया में रहते हैं, जम्मू साइड उस तरफ कहीं रहते हैं, एंड वहां कुछ मेजर उनका हार्ट अटैक हुआ था फादर इन लॉ का. तो ये लोगों ने गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से जा रहे थे,
and the whole family was sitting over there, but some riots or something was happening, तो वो पूरा जैम था 3-4 घंटे का, जो बोला है कि सुबह से जैम है और आगे एक 3-4 घंटे तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो जैम खुल जाएगा. So since they are into Reiki and they were all showing, क्योंकि Reiki का पहला जो प्रिंसिपल ही होता है attitude of gratitude. उसका पहला प्रिंसिपल, जब आप Reiki सीखने जाते हो उसके अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल आप कहते हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है. So they started doing Reiki. So जब Reiki कर रहे हैं तो फादर भी Reiki कर रहा है, मदर भी Reiki कर रही है, बच्चे भी Reiki कर रहे हैं. So they were doing that, you know. All of a sudden एक बंदा आता है, उनको गाड़ी पे, they were having a driver over there. उस ड्राइवर को कहता है कि ये तो सवेरे से बंद है, ये रास्ता तो खुलेगा नहीं, यहाँ से गांव का रास्ता है, थोड़ा सा कच्चा जरूर है लेकिन आप निकल जाओगे अगर आपको इतना अर्जेंट है तो. दोनों कौन था क्या नहीं था, तो उन्होंने वो अपनी गाड़ी को टर्न कर दिया और उस कच्चे रास्ते से जाना शुरू कर दिया. उसको देख के 1-2 कारें उसके पीछे भी गई, फिर मतलब they started and eventually they reached that their in-laws place in 1.5 hour. पहुंच गए, हो गया. कहते जब हम वहां पहुंचे, हमने हमारे लिए तो नॉर्मल बात थी, लेकिन बाद में हमको पता चला, जैसे कोई और रिलेटिव भी आया था, वो भी यहीं बीच में से कहीं था, वो कह रहा है मैं तो 6 घंटे से फंसा हुआ, आप कैसे पहुंच गए? कहते हम तो इतने बजे यहीं पे थे. वो कह रहे हम भी वहीं पे थे. कहते हम तो कच्चे रास्ते से आ गए ना. तो कहते कौन सा कच्चा रास्ता? कहते गांव का कच्चा रास्ता. कहते कोई कच्चा रास्ता नहीं है, पठानकोट का था, एक एरिया में जानता, कोई कच्चा रास्ता नहीं. तो nobody knew कि वो बंदा कौन था, किसने डायरेक्शन दिखाया, वो ट्रैक कैसे बना, वो लोग कैसे पहुंचे, you never know, but they reached in time. This is what magic is and it will happen if you have a gratitude. और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, and they showed lots of gratitude to that, you know, episode, you know, that. तो मेरे लिए भी तब मैंने सोचा कि मैं भी रेकी सीख लेती हूँ, मैंने रेकी सीखी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि उनका वो कैसे हो गया. आज जब मैं मैजिक कर रही हूँ तो मुझे समझ आया इट इज जस्ट द ग्रैटिट्यूड व्हिच क्रिएटेड दैट मैजिक. मैंने कहा उसके फादर भी कर रहे हैं, मदर भी कर रहे हैं, सब लोग कहते पूरी हमारा वार्म, हाथों में वार्मनेस आ गई थी. वो मतलब दे वर शी वाज एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स. उस टाइम मैंने सिर्फ रेकी इज अ हीलिंग विद हैंड्स, यू नो. तो मुझे ये था कि इसी से सब कुछ होता है, मैं उसी को करती रहती थी, उसी से. बट अब समझ आता है कि रेकी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो मुझे तब नहीं समझ आया था, शायद आज समझ आया जब मैं मैजिक सेशंस ले रही हूँ. आप मोनिका आप जब कभी भी साई, आई डोंट नो, आप रेकी का एक वो साई बाबा बेसिकली मोड हो जाती है हमारी जब हीलिंग दे रहे हैं, राइट? तो आप अगर मेरे को तब समझ में आया, तो मैंने एक दिन साई, ऐसे मैं देखता नहीं हूँ, बट साई बाबा सीरियल देख रहा था, मैंने कहा ओ बेटे, मेरे मुझे यही निकला बेटे. ठीक है, क्यों? बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू से थैंक यू, यू नो, थैंक यू मतलब ग्रैटिट्यूड, पहले करने से पहले भी और करने के बाद भी. ठीक है, वो उस मैजिक को जो करने, वो बेसिकली वही, I mean, you call it Reiki, you call it energy, you call it any way, but you channelize उस energy को ही कर रहे थे healing के लिए लोग, basically. Yes. मैम मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं इसी से, रेकी से. एज ए रेकी पे मैंने भी रेकी की हुई है, मास्टर्स हूं मैं, रेकी मास्टर. तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ. हेलो. हाँ जी सुन रहे हैं हम. मैम मेरे ना बुआ जी के हस्बैंड काफी बीमार हो गए थे, तो मैंने उस टाइम अभी सीखी थी रेकी. तो ऐसे ही सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, वो 2.5-3 महीने से बेड पे थे, सारा कुछ ऐसे. तो मेरे मम्मा को बड़ा बिलीव है रेकी पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कर उनकी जाके. मैंने कहा ऐसे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो फिर कर सकते हैं. तो मेरे बुआ जी ने मेरे को रिक्वेस्ट की, मैंने उनकी 2 दिन रेकी की, और रेकी हुई मतलब कि 1-1 1.5 घंटे की, क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार थे. इवन मैंने बताया ना, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था. तो 2 दिन के बाद जब मैंने उनकी रेकी की, एक तो मैंने उनको रीजन बताया, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या था, तो मैंने कुछ ऐसा बताया जो इवन मुझे भी नहीं पता था, मेरे पापा को भी नहीं पता था, बट वो बात उनकी मेरी दादी से हुई थी कुछ उस चीज के बारे में. तो उन्होंने मुझे ये चीज डिस्क्लोज की कि ये बात ऐसे हुई थी. तो
एक तो ये चीज, दूसरा वो 2 दिन के बाद वो अकेले खुद वॉक पे जाने लगे। और चीज के बाद मुझे इतना ज्यादा विश्वास हो गया, क्योंकि उस टाइम मैंने अभी सीखी थी अपनी, थोड़ी हम प्रैक्टिस करते हैं 21 डेज की, वो सारा कुछ किया। वो उसके बाद एकदम से मेरा पहला वो केस थे कि मैंने उनको वैसे ट्रीटमेंट दिया रेकी हीलिंग से। तो आपने जैसे अभी बताया कि उसके बाद इतना ज्यादा मुझे उस पर बिलीव हो गया। अब मैं, और उसके आई थिंक आप मानोगे उसके 2.5-3 साल बाद जाके उनकी कहीं डेथ हुई है। But you know, it is all magical. वही same वही thank you है, gratitude। बिल्कुल, क्योंकि हम उसकी प्रेयर यूनिवर्सल पावर में, उसमें ये भी कहा जाता है कि it is you should not give it for free। हाँ, बिल्कुल free। You know, if you are having a service of free, you have to pay for it। मतलब मैं अगर किसी की रेकी करती ना, मैं कहती एक टॉफी दे दो, give something। You know, it is not important how much you give, it is the importance is that आप कुछ दो, because आप जब तक किसी को कुछ देते नहीं हो ना, यूनिवर्सल लॉ है, जब आप थैंक यू दोगे you will receive abundance। एक्चुअली पता है मोनिका, दिस इज सो ट्रू पे। इनफैक्ट यहाँ तक है कि जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, गुरु भाई को भी कर रहा होता है या गुरु भाई मेरी कर रहा होता है ना, तो 1 रुपए पेटीएम से इधर उधर पहले ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों? हाँ एक्चुअली नहीं, जेन्युइनली हम इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें कुछ, इसलिए कि वही जो आपने बोला कि उसकी जो है ना वो नहीं पड़ती, क्या कहते हैं, उसका असर या इम्पैक्ट नहीं होता। अगर हम खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। It is always said you need to, you know, pay something and then you will receive more। So when you show the gratitude, it could be feelings, it could be anything, you know, तभी हम कहते हैं मैजिक डस्ट डाल दो। मतलब we say give something, when you give something you will receive in abundance। So कोई भी सर्विस आप, मैं बहुत लोग ऐसे हैं, सपोज अभी पीछे ही किसी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं दिस इज फाइन, इट इज, कहता नहीं मैम वो तो हो ही नहीं सकता, फ्री तो मैं लूंगा ही नहीं, फ्री मेरे से नहीं होगा, आपको कुछ अमाउंट जरूर लेना पड़ेगा। सो दे हैव मेड दिस अ हैबिट कि वी हैव टू पे नो मैटर व्हाट, दे हैव टू पे बिकॉज दे बिलीव इन दीज थिंग्स, यू नो, until unless they give, the receival is very difficult। So it is always we try to give everything, let us give, let us give, let us give, then you get that abundance in your life। so ये जो philosophy पहले मुझे नहीं समझ आती थी, पहले वो नहीं होता था, but then I realized little bit, you know, जब मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, उनको मैं रीलिंग भेजती थी, तो जब मैं उनको कहती थी, कहते हैं ओ कोई नहीं, तू तो मेरी बहू है कि नहीं, कोई नहीं, मतलब वो ऐसे करते थे। तो मैं कहती डैडी वो कोई बात नहीं होती है, आप कुछ भी दे दो। कहते अच्छा मैं तेनू टॉफी दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा मैंने टॉफी दे दी। तो वो स्पेशली मेरे को जो इमली वाली छोटी सी टॉफी आती है ना, वो स्पेशली इकट्ठे करके रखते थे मेरे लिए, कहते थे आज मेरी हीलिंग कर दें। तो मतलब दैट वे इट इज जस्ट अ गेस्चर ऑफ शोइंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड, दैट्स इट, नथिंग ऑफ दैट काइंड। Ma'am, I wanted to tell you something. Yeah. Last night, actually, I transferred some 500 rupees for one person is taking care of that, you know, monkeys in North India. So I just transferred that yesterday 500 rupees. But I'm happy about that. At least whatever I'm getting, I'm just a little bit. I'm just transferring it. Yes, yes. So that is so that is why you got that money. You know, it is always there. You know, when you show attitude of gratitude to one thing, you will receive more, or that is for sure you will receive more. You know. In multiple times you say that. Actually, we should maintain a habit of giving 10% of 10%, our income yeah. as a donation. Yes, yes. जब मैंने प्राणी हीलिंग सीखी थी, standard rule, जितना भी कमाते हो उसमें make sure that you serve 10% to the society in whatever form you want to give. Whether give it to your parents or you give it to some anath ashram or somewhere or the other. Make it a point. Whether you are earning 1 rupee, give 10% of it. Whether you're getting 50,000, give 10% of it. If 50 lakhs, 51 crore, whatsoever it is, don't think इतना पैसा दान दे दूं. Don't think about it. When you start, क्योंकि हमारा ना दिमाग ना बहुत जीनियस है, वो लेना तो जानता है, देते टाइम कंजूस बन जाता है. So we should be. So see, that way, when it is come to our commitment, everything, somewhere, you know, hide that, you know, whatever the return I got it. I used to pay only for that, you know,
2% or 3% like whatsoever it is, you know, मैं ये नहीं कहती हूँ कि initially you give, हमें तो बोला गया था 10% को, but I will not say that it is up to you how much, but decide 1% and start. Maybe initially 5% दे दो, and slowly and steadily you can increase to 10%. But I right from the beginning I'm giving. जब से मैंने उसमें ये सुना था तब से मैंने 10% देना शुरू कर दिया. मेरा कितना मर्जी अमाउंट आ जाए उतना परसेंट. यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है जहाँ पे वो पंडित, मतलब जो बच्चे हैं अनाथ बच्चे हैं उनको वो ट्रेन करते हैं पंडित की पढ़ाई जो भी होती है. आई डोंट नो एजुकेशन इज दैट कॉल्ड, यू नो. वो गुरुकुल है. तो वो उनको कूलर चाहिए था, वो मुझे लिख के भेज देते कि हमें कूलर चाहिए, हमें ये चाहिए, तो मेरे को तो देना ही है. तो एक दिन कूलर दे दिया, कभी ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करा दिया, कभी कुछ करा दिया. गर्मियां फ्रूट्स है, फ्रूट्स दे दिए. अब जैसे लॉकडाउन के चक्कर में मैं कुछ नहीं दे पा रही थी उनको. तो मैंने अब यही सोचा था जैसे ही थोड़ा सा खुलेगा I'll send something over there, you know, that way. तो मेरे को वो बच्चों के लिए उन्होंने पीछे जैसे महाशिवरात्रि था तो उनका था कि हमें नए कपड़े बनवाने होते हैं, क्योंकि हम जब पूरा ग्रुप का ग्रुप वो प्रेयर करता है तो they wear new clothes, you know. तो I gave them that money and they bought new clothes. उसकी फोटोग्राफ्स खींच के उसने मेरे को भेजी कि देखो हमने सब बच्चों के लिए ऑरेंज कलर के कुर्ता पजामा, and then we got it. So that is why. So it is actually very, very good habit of tithing, you know, 10% to the society in any form, you know. What I used to do, ma'am, I just collect that amount and जो मेरा वाइफ टीचर है उसमें जो काम कर रहा है ना, वो बच्चों का जो फीस होता है पढ़ाई के लिए, बुक्स के लिए, वो हम लोग डोनेट कर रहा था. Very nice. Any form. It could be any form, you know. But yeah, I am doing it from last 15 years now. Very, very awesome. वो गुरु था, वो उस दिन से बताया था. जो मेरे पास है, जो सैलरी आता है 2% 3% ऐसे ही रखता था मैं. Very वो nice. अमाउंट से ऐसे कर रहा था. Very nice. क्या होता है जैसे कि हम लोग परसेंटेज देते हैं ना, तो यूनिवर्स सोचता है कि इनका देने का इंटेंशन है तो वो आपको अवार्ड देगा. तो आपने परसेंटेज फिक्स किया है. परसेंटेज का मतलब है आप जितना भी कमाओगे उसका परसेंटेज दे रहे हो. आप लोगों में से किसने डॉक्टर जय मदान को देखते हो या मैंने देखा है बहुत जबरदस्त. नो, she has a partnership with God. Whatever she earns, 50% is of God. उसने पार्टनरशिप ना रखी है गॉड के साथ. आप मेरे को जितना दोगे ना 50% आपका है. वो चाहे किसी टेंपल में करके कुछ करे या समथिंग और द अदर, आई डोंट नो व्हाट शी डज विद दैट, बट देयर इज अ पार्टनरशिप. कहते हैं मुझे आप जो दोगे 50% आपका है. यूनिवर्स 50% आपका है. अब यूनिवर्स तो एबंडेंस में देगा ही देगा. सो इट इज अप टू यू हाउ यू टेक इट ऑन, यू नो. सो दैट इज व्हाई एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच वन ऑफ आवर लाइफ, यू नो. एंड दैट इज व्हाई जितने भी रिच लोग हैं, they believe in tithing, they believe in getting that, you know, they showing gratitude towards the society. कोई भी टॉप पे नहीं पहुंचा विदाउट ग्रेटिट्यूड. कोई नहीं पहुंचा. Choose 3. Okay, put in the list which is not in your mind, जो आप सोचते हो चाहते हो लेकिन आपके माइंड में रह जाते हैं. You put it into the list. उसमें से 3 निकालो और 3 निकाल के आंख पे विजुअलाइज करो कि this is done. It is done, it is done, it is done. You just visualize it, it is done. And then you will see the magical power, you know. It is for everyone and it will be available. जैसे इन्होंने वॉलेट लॉस लिया, ऐसे मेरा आईफोन गिर गया था. My mom was hospitalized. मुझे नहीं पता कहाँ गया. मैं मामा के लिए दवाई लेने गई हुई थी and mama was hospitalized. और गाड़ी में जैसे ही बैठी ढूंढू तो फोन ही नहीं नजर आ रहा. मैंने ड्राइवर को बोला भैया फोन तो नजर नहीं आ रहा. कह रहा मैम अभी आपके हाथ में था. सब जगह ढूंढा, फोन किया, कुछ नहीं समझ आ रहा था. अब मुझे टेंशन थी कि मैं क्या बोलूं, घर में भी कैसे बोलूं, सबसे कैसे बोलूं. मैंने तो बस एक यही प्रे की, सारे सबको मैंने कहा आज मैंने किसी के साथ कोई बुरा कहा हो, कुछ करा हो तो प्लीज आई एम रियली रियली सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाट एवर आई हैव डन फॉर एवरीबॉडी. तो मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरी मम्मी ने कहा तू चिंता ना कर, तेरे को फोन आ जाएगा. तेरा फोन नहीं जाता, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, तेरा फोन कहीं नहीं जाता. शी वाज वेरी मच, यू नो, फर्म इन दिस सेइंग कि कहीं नहीं जाता तेरा फोन. तू इतनी सेवा कर रही है, तेरा फोन कभी नुकसान नहीं हो सकता. मैंने फिर भी अपने प्रेयर करती रही कि पता नहीं. एंड देन आई कॉल्ड माय ब्रदर, सॉरी मेरे बेटे को मैंने फोन किया. कहता मम्मा मैंने अलार्म लगा दिया है, आप उस जगह अमर कॉलोनी पहुंच जाओ, वहां पे कहीं दिखा रहा है. उसने अब कुछ सर्चिंग का कुछ लगा दिया था, आईफोन का कुछ होता है ऐप कुछ सर्च का.
वो लगा दिया, हम सब ढूंढ रहे हैं, मेरी भाभी ढूंढ रही है, मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, मेरा बेटा ढूंढ रहा है, सब ढूंढ रहे हैं, बस वही दिखा रहा है वो सिग्नल, लेकिन फोन कहीं नहीं मिला। अलार्म भी बजाया तो बिकॉज इतना शोर था अलार्म का, कुछ पता नहीं चला। देन आई केम बैक अगेन, मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी नहीं मिला। मम्मी कहती नहीं, तेरे को मिलेगा तो टेंशन ही मत ले। And all of a sudden at 8:30, my husband and my son was searching that area only कि क्या है। तो वो एक किसी बेसमेंट में चले गए, उन्होंने बोला यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं कि एक फोन है यहाँ पे कहीं पे। तो कह रहा है रेड कलर का फोन है? तो कहता है हाँ जी रेड कलर का फोन है। अरे उसको तो मैंने किसी रिक्शा वाले के पास देखा था। कहते रिक्शा वाले के पास देखा था? कहते हैं वो एशियन पेंट्स है वहां पे सड़क पे गिरा पड़ा था, तो एक रिक्शा वाले उठाया था, तो मैंने उससे पकड़ के पूछा किसका फोन है? वो कहता मेरा फोन है। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। कहते हाँ वो रेड कलर का फोन है, उसका कवर रेड कलर का था। हाँ रेड कलर का था। कहते वो रिक्शा वाले के पास है। तो अब ये तो पता चल गया रिक्शा वाले के पास है। रिक्शा तभी हम जो ढूंढ रहे थे उसी एरिया में दिख रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। देन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, यू नो दैट वे, तो रात को 10 बजे कॉल आया कि मैंने बस प्रेयर यही करी जाती, भगवान मैंने जितने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे ना प्लीज, क्योंकि मेरे सारे कॉन्टैक्ट एवरीथिंग इज देयर, मम्मी हॉस्पिटल में है, क्या करूंगी मैं, कैसे होगा मेरा, प्लीज मेरा सपोर्ट करो और हेल्प करो। आई वाज सेइंग दैट ओनली। रात को 10 बजे मेरे बेटे का फोन आया, मम्मा आपका फोन मिल गया। अब कैसे मिला फोन कि उसने जैसे रिक्शा वाला, अब वो कारपेंटर ने बोला कि मैंने तो उसके हाथ में देखा था, मैं तो वहीं पे था, शायद वहीं पे गिरा होगा। मैंने कहा वहीं गिरा था। फिर दैट कारपेंटर ही वाज गोइंग बैक होम, काम करके जब उस जगह से वापस आ रहा था, कोइंसिडेंटली दैट रिक्शा वाला वाज सिटिंग ऑन दैट पटरी और स्कैनिंग द स्क्रीन की भाई क्या है, कैसे करूं, कैसे खोलूं। तो he caught him, you know. उसने 2-3 थप्पड़ लगाए, तेरा फोन है ये, झूठ बोल रहा है। कह रहा नहीं मेरा फोन ये सड़क पे मिला था। एंड देन आई गॉट माई फोन बैक। आई शोड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दैट पेंटर। मेरे हस्बैंड ने उसको कुछ अमाउंट भी दिया। कहता है नहीं जी नहीं, मैडम का फोन है, इनका इनसे लेके हमने कुछ वो करे। कहता है नहीं, यू एक्चुअली आपकी वजह से, मतलब कहाँ पेंटर घर जा रहा था और रास्ते में पटरी में मिला। मतलब इट इज ऑल मैजिकल। So this world is full of magic. The only thing is, if you are kind, if you are humble, if you are, you know, have that gratitude towards the universe, you will not, आपका कुछ कभी गलत हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन सबसे बड़ी मोनिका, you need to believe that वो पहुंच जाएगा तुम्हारे। मैंने अपनी वो बात नहीं बताई। हाँ मुझे मालूम है, मेरा वॉलेट खोल के तुम्हारा वॉलेट याद आ गया था मुझे। मैंने भोपाल, मैं बहुत लेजी आदमी हूँ। मैंने भोपाल में वॉलेट छोड़ा था, एक बार झांसी में मैं गया हुआ था, कॉलेज टाइम की बातें हैं सब। मैं छोड़ा हुआ है, और दुनिया के पता नहीं कौन कौन से कोने में वॉलेट छोड़ा हुआ है, फोन छोड़े हुए हैं, ठीक है, बट टच वुड, ठीक है टच वुड है, मतलब एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम आई ऑलवेज गॉट इट बैक। ये मुझे भी नहीं पता होता, मैंने बताया था कैसे पहुंचता है वो, मेरा विश्वास होता है। मेरे माँ बाप कहते थे अरे बेटा तुझे खो दिया तूने, मैं कहा टेंशन मत लो, वो अपने आप मिल जाएगा, पहुंच। और ऐसा हुआ है घर में 2-3 दिन बाद कोरियर, घंटी बज रही, कोरियर आ रहा है, कोरियर मुझे भी नहीं पता, ये नंबर किसी को नहीं पता, वो पता लग रहा है जी अरे ये तो मेरा वॉलेट है ना। फिर मेरे को ये भी नहीं पता किसने भेजा है, और कई बार फोन आया मेरे पास, सर आपका ये रह गया। हम बेपरवाह घूम रहे हैं कि हमने यूनिवर्स को दे रखा, हम कह रहे हैं भाई टेक केयर, मतलब इतना विश्वास है कि टेक केयर कर लेगा यूनिवर्स। That is what, because you have very अपने आप पहुंच जाता है, visualization. You have that strong kind of a thing. सबके अंदर नहीं होती है ये पावर। तो it is, you have a very strong manifestation power, you know. So जब आपने कहा आ जाएगा, तो यूनिवर्स ने कहा आ ही जाएगा, ये कहीं जाएगा नहीं, इसको तो सेहत पे असर ही नहीं होता। So मेरी माँ कहती है आलसी जीवों की निशानी है ये। So let me show you a beautiful video. Which is a very beautiful. Yes. जब स्क्रीन पे शो हो तो मुझे बता देना कहाँ गई। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ यार एक वीडियो गैलरी खोल दो यार, तो तेरे अच्छे वीडियो दिखा देना यार। Follow your heart. और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे ना, तो वो लोग मेडिकल पढ़ रहे थे, अब क्लोज फ्रेंड था, एंड तो हमारी डिबेट कर दी उसने उस समय। उसने बोला यार तुम लोग साले, क्योंकि मैं आपको बताया शुरू से लिखता हूँ, तो मैं कहता था दिल पे मत ले, दिल यू नो लिखता हूँ, हार्ट से लिखता हूँ, दिल से लिखता हूँ, ये वो। कहता तूने बकवास फैला रखी है दिल वाली। साले मैं एमबीएस में 3rd-4th ईयर में आ गया, तो कहता है मैंने सब अब देख लिया है साले, सिर्फ ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में यू नो ये है,
क्या कहते हैं, हमारा ब्रेन है, एक्चुअली ब्रेन का एक पार्ट है जो इमोशंस क्रिएट करता है, हार्ट वर्ड से ब्लड पंप करता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। मतलब ही इज जस्ट यू नो फॉट विद मी, आई डिडंट ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट इन टाइम आई कुड नॉट, मैंने बहुत कुछ कोशिश किया, उसको समझा नहीं पाया मैं। आज कुछ टाइम पहले जब मैंने चक्रास के बारे में सीखा, ठीक है, हार्ट चक्रा, तो मेरे को समझा, ओ भाई साहब ये मुझे पहले पता होता तो मैं उसको उसी दिन देता कि एक्चुअली भाई साहब, और तुम फिजिकली देख रहे हो बट देयर इज अ होल एनर्जी सिस्टम जो तुम स्टोर कर रहा है बेसिकली तुम्हारी एनर्जी को, राइट। तो कई बार जो सिक्स्थ सेंस होती है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मेरा मन नहीं कर रहा जाने के लिए, so that is your heart which speaks, you know। और वाकई सबसे अच्छी बात मुझे इस वीडियो के अंदर ये लगी कि आपका हार्ट तो आप सबसे पहले बना, ब्रेन तो बाद में आया। अरे ब्रेन को पंप कौन करता है? ब्लड हार्ट ही तो देता है, हार्ट देता है, एंड देन ब्रेन लुक्स एट द प्रैक्टिकल। अब आप हमारा मैजिक हो रहा है, हाउ तो है ही नहीं ना, लॉजिक ही नहीं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे मैं एक सिंपल एग्जांपल finds the logic of everything, you know, but you don't have any logic। पीपल मैक्सिमम कोमा चले जाते हैं, ब्रेन डेड होके भी लोग होते हैं, जिंदा होते हैं, लाइव होते हैं, ठीक है। हार्ट डेड होने के बाद कौन सा आदमी जिंदा रहा, ये बता दो। ब्रेन डेड, ये सिंपल सा लॉजिक है, ब्रेन डेड होने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है, राइट। हार्ट डेड होने के बाद आदमी नहीं जिंदा रहता है, सिंपल सा लॉजिक। वेरी वेरी ट्रू, so important it is, you know। So everything is in our heart, that is why we always say have that feeling, you know, have that feeling। कहीं भी कोई भी, अभी आपने लॉटरी भी ढूंढ रहे थे ना, प्लीज आस्क योर ओन हार्ट हाउ यू गेट इट, यू नो, यू विल फाइंड द पाथ। अपनी आज टू डू लिस्ट में डाल देना, आई वांट टू इन्वेस्ट मनी ऑन लॉटरी सिस्टम या व्हाटसोएवर इट इज, यू विल गेट द आंसर, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा तुम्हें आंसर। मैम मैं तो जब जॉब अप्लाई करती हूँ ना जहाँ पे दिल कर रहा होता है, वहाँ पे जहाँ पे ऐसा लगता है ना नहीं, मुझे दिल कहता है कि नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे जॉब भी नहीं अप्लाई करती। हाँ ओके, एक अजीब सी सेंसेशन हो जाती है उस टाइम जब हमें कुछ लगता है ना ठीक नहीं है या कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत इवन बहुत ज्यादा महसूस होता है। हमारा हस्बैंड ही गोज टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 3 months और सो, 1-2 महीने के लिए जाते हैं। पिछली बार उनको कॉल भी नहीं आया कुछ, तो मेरा अंदर से बड़ा अनईजीनेस फील हो रहा था, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने इज नॉट वेल। सो सिंस आई हैव डन दिस, तो मैं आई एम अ क्लैरवॉयंट आल्सो, आई कुड सी कि उनके चक्रास अनबैलेंस्ड है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर है कि इनका तो ये कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं फोन करी, फोन नहीं उठा रहे, मैसेज भेजे तो मैसेज नहीं है। तो देन आई कॉल्ड माय सिस्टर इन लॉ, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, दूसरे पार्टनर को फोन किया, तो इज नॉट वेल, ही इज एट होम, फोन भी नहीं उठा रहे, इसलिए है कि उनका जो स्टमक है वो अपसेट है। तो मैंने मुझे चक्रा से समझ आ रहा है, इट इज ऑल ग्रे। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है। देन आई सेंट द हीलिंग टू हिम, यू नो, इट वाज सो बैड कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे, इट वाज सो बैड। So I sent healing to him, you know। तो फिर अब मेरे को फिर रात को मैसेज आया कि तुम्हारी इतनी सारी कॉल्स आई। I was worried कि there is something wrong, मुझे समझ नहीं आ रहा था, and you didn't even send message to me। तो कहते हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा आप कैसे? कहते हाँ मैं ठीक है। So मैंने healings भेजी and then he got fine, you know। कहते ऐसे थोड़ी होता है, he doesn't believe that। इतनी दूर से इंडिया से बैठे एकदम साउथ अफ्रीका हीलिंग भेजेगा बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप बिलीव करो ना करो, आप ठीक हो ना, बस दैट्स इट। So they all are in their heads कि कैसे हो सकता, वहां से इतनी दूर से कैसे आ जाएगी, क्या होता है। मेरे सारे फ्रेंड्स बताया नहीं तो मम्मी के सारे लॉजिकल है, मेरी कम्युनिटी मेरी तो सारे आईटी वाले हैं, they don't agree with my thought process at all, I can't help that। So that's okay, it is their point of view ना। Once some miracle will happen, and you know even in fact with my husband also कि अभी इनका ना नी में कुछ एक हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया था इधर वाला, तो बोल रहे थे लिगामेंट टियर हो गया था तो नी का। तो डॉक्टर्स को जिसको एक्सरे कराया, तो डॉक्टर्स के पास तो सबसे पहले एक ही इलाज होता है कि इसका ऑपरेशन करती है, इसका तो अरे हाँ उनका तो ये सिंपल इलाज है। अरे यार अभी आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड ठीक है ओके, यू डोंट वांट मी टू हील यू, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं अपने गुरु जो मेरे जिनसे मैंने सीखा, ब्रिगेडियर अजीत सिंह, आई टेक यू टू हिम, यू नो। तो आई वाज प्रेइंग, आई प्रेड दिस दैट ही एटलीस्ट गेट एग्रीज टू इट कि यस ही हैज टू डू दैट। फिर मैंने उनको बोला देखो डैडी, मेरा फादर इन लॉ यूज्ड टू गो विद टू हिम, यू नो, मैं ही लेके जाती थी उनको। तो मैंने कहा वो ठीक हुए ना, तो आप चलो, तो एक बार चलो, आप मेरे को ना सिर्फ 6 सेशन दे दो, आप अगर आप ठीक ना हुए ना तो उसके बाद जो मर्जी कर लेना, मैं आपको बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ही सेड ओके फाइन, परफेक्टली। तो मान गए। फिर एंड और जब मैं वहां गई तो सर ने बोला तो तुम्हारे हस्बैंड तो बिलीव नहीं, नहीं बस मैं ले आई हूँ, आप जैसे बिलीव करें या नहीं करें। एंड आज की डेट में अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इट्स बीइंग अराउंड 3-4 years नाउ, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कोई
वो नहीं होता, exertion भी नहीं होती, कुछ भी नहीं, it's perfectly fine. So this is healing's work, you know, that is the thing. So our wishes also work, our dreams also work, everything works. The only thing is your belief system. What do you believe, what you don't believe? That is the most important thing. Okay. Yes. अरे एक इसमें एक क्वेश्चन मेरा है मोनिका, जो मुझे आपसे पूछना था. मैं एक चीज को लेके थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ. वो ये होता है कि you know, I don't know, sometimes I feel it is intuitive, मतलब honestly, और मैं intuition पे act भी कर देता हूँ, but वो समझ में आता नहीं यार ये गलत हो गया या गलत हो गया. अब I don't get sometimes, कैसे समझाऊँ, confusion हो जाता है, intuition है या मेरा brain create कर, you know what I'm trying. इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपका जैसे गलत है तो नहीं, गलत नहीं. जो see, you don't have to think, जो हो गया, you did it with the best intention. That's it. Yes. Don't get guilt into it कि भाई मैंने क्यों कर दिया, ये ऐसे नहीं, मैं उस गिल्ट में नहीं जा रहा हूँ. मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ, या सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट माय ब्रेन इज क्रिएटिंग टू बी समथिंग और एक्चुअली एक इंट्यूटिवनेस. आप समझ पा रहे हो, दोनों चीजें कई बार सेम सी हो जाती है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. ठीक है, सेम हो जाती है जब आप, तुम्हारे लिए सेम नहीं होंगी. तुम्हारे लिए तुम्हें लगता है, लेकिन वो है नहीं. तुम्हारा हार्ट तुम्हारे ब्रेन से ज्यादा भारी है तुम्हारे केस में. So you don't have to worry about it. वो सोच ज्यादा सकते हैं जो कि एनर्जीज में बिलीव नहीं करते हैं. मैं उनके लिए मान सकती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं मान सकती, because it doesn't apply to you in any case. चल ठीक है. So I have been given endless talents which I begin to utilize today. Wow. ये देखो जी, ये तो सबके ऊपर हाल है. ये लोग कहते हैं ना, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते. तुमने ये देखा कि तुम्हारे से ये नहीं होगा, छोड़ दो. तुम्हारे ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपके माइंड में आएगा कि वो इतनी यंग है, इतनी यंग एज में वो इतना कमा रही है, इतना सब कुछ कर रही है, यार मैंने तो पूरे साल बर्बाद कर दिए, मैंने क्या कर दिया यार, मुझे नहीं समझ आया, मुझे क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, मैं क्यों नहीं इतना कमा पा रही हूँ, मुझे नहीं. ये माइंड में बार बार आएगा. Accept no one's definition of your life. Define yourself. What you are is you are. You are unique. आपके पास जो है वो बाकियों के पास नहीं है. आप उसको देख लो कि वो इतनी यंग होके इतना कमा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखो ना, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास आपने जो लाइफ कहाँ डिवोट की है, that is different than that person. Oh God. Ma'am, can I share something on this? Yes, please. Ma'am, आपको पता है कि मेरी मैरिज कैसी रही, सारा कुछ. So when I was into that marriage ना, तो actually my husband was very like violent और domestic violence सब कुछ होता था. तो even my father-in-law he knows कि उनका बेटा गलत है. तो पता नहीं एक दिन उनके मन में क्या आया, he said to me, you are a failure. मुझे कहा उन्होंने. अच्छा. तो मैं ये बात ना उस टाइम भी मैं बड़ी हैरान हुई कि मुझे क्यों बोला. हालांकि जितना मैंने वहां जाके I was working like when I was in Canada I was working 15 hours per day. मैं सुबह 6 बजे काम शुरू करती थी, रात को 11:30 बजे वापस आती थी. आके फिर बच्चे को देखना, फिर घर का सारा करना, फिर सोना, फिर सुबह अगले दिन जाना. बट मेरे मन में ये बात हमेशा रही कि मुझे ऐसे क्यों बोला. तो जस्ट डिडंट नो अबाउट एनीथिंग. जस्ट को अभी हमने 1.5 साल पहले बताया है सारा कुछ कि ऐसे है. तो ये भी बताया. एक दिन ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला था. मुझे आज तक वो समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे कैसे बोली ये चीज. तो जस्ट ने मुझे आगे से रिप्लाई किया, मम्मा आप कैसे फेलियर हो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो अपनी मम्मा को देख रहे हो, आप अपनी मम्मा के साथ हो, उनकी टेक केयर कर रहे हो, आप ये कैसे हो. आप अपने माइंड पे ये बात बिल्कुल मत लाओ, दिमाग में ये बात बिल्कुल ना लाओ कि आप एक फेलियर हो. उन्होंने जिस बात पे बोला, क्या पता अपने बेटे से दुखी आके बोला या इसलिए कि हाँ तो फिर भी इसका कर रही है, जो भी है सारा कुछ है, व्हाटएवर, उस कंटेक्स्ट में बोला, वो उनका दिमाग था. So that is what she is right, absolutely. लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि कई बार जेलसी में लोग बोलते हैं.
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बोलते हैं, अपने आप को अलग करने के लिए लोग बोलते हैं, आपको तो बोलते रहेंगे. You don't accept it. You know what you are. That's it. बट मैम कभी कभार ना जब कुछ ऐसा मतलब कि हम कुछ सोचते हैं और वो नहीं हो, अब तो खैर टचवुड आई एम इन अ वेरी पॉजिटिव वाइब, जो पहले ऐसा कुछ होता था कि सोचती थी और नहीं होता था, तो मेरे बाद में ना मेरे दिमाग में वही बात आ जाती थी. So don't accept it. That is what I'm saying. You need to be very, very strong when you are doing mirror exercise. Self-love. You are what you are. You have to be positive. Whatever you are doing, you know, सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज आपको क्या देती है? आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, आपको वो चीज देती है जो ना आप किसी को भी, यू बिकम अनस्टॉपेबल बीइंग, यू नो. सो दैट इज व्हाई ट्रस्ट योरसेल्फ. सबसे पहली बात है, किसी दूसरे को, तुम अपनी बेटी को प्यार करती हो, तुम अपनी मम्मा को प्यार करती हो, सबको प्यार करती हो ना, तो तुम अपने आप को सबसे पहले प्यार करो कि तुम जो हो वो तुमसे अच्छा कोई नहीं है. जब तुम अपने आप को प्यार नहीं कर सकती, दूसरे को प्यार कैसे दे सकती हो तुम? स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. पता है आपने मेरा काम देखा है, मैं आपके अंडर थी. आई वॉज लाइक, मेरा को ये होता था कि मैं अपने आप को इतना बिजी रखूं कि मेरे मन में कभी कोई ऐसी बात ना आए, है ना. अब जब थोड़ा सा कभी बंदा फ्री होता है, क्योंकि मैं यूजुअली मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ. अभी भी जैसे घर पे हैं या कुछ है तो मैं बुक्स रीड कर रही हूँ, आपने वो बताया मुझे, वो कर रही हूँ, उसका सारा कर रही हूँ. तो आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को बिजी रखूं. बट समटाइम्स अभी भी कभी कभार मेरे माइंड में वो चीज आ जाती है. तो मुझे इंसान हो आ जाती है. पास्ट को बंद कर दो, जिंदगी भर अगले जन्म में भी लेके जाना है उनको, क्या फादर इन लॉ को? नहीं मैम, पर मेरे को पता है हैरानी इसी बात की होती है कि यार मेरे को लोग कहते हैं फेलियर. आपको बता दो, मैं जब एक टीचर से डायरेक्टर बन गई तब भी मैं आज फेलियर हूँ. बता दो. मतलब कि मुझे सिर्फ इस बात की हैरानी होती है कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं कहा और मुझे बोला. वो बोलेंगे, वो उनका मन किया, उन्होंने बोल दिया, वो ये है तो फेलियर, एज अ वाइफ फेलियर है ना. तो मुझे एक बात बताओ, उस मोमेंट को लेके क्यों बैठी हुई हो? क्यों बैठी हो उसको मोमेंट को लेके? मैम सिर्फ मुझे ना यही बात उनकी बहुत ज्यादा पिंच करती है कि आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर. तुम यू आर नॉट अ गुड मदर. समबडी कम्स एंड सेज टू यू, इज इट राइट? नो. देन जब ये बात एक्सेप्ट नहीं करी तो वो बात क्यों एक्सेप्ट कर रही है? किसी के लोग तो कुछ कहते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे. हर कोई बोलेगा. कब तक उस चीज को उठा के लेके चलते रहोगे? वो बोझ लेके चलते जा रहे तो चलते जाओ, नई जिंदगी बना ही नहीं सकते आप. यू हैव टू क्लोज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लीज. इट विल कीप ऑन पोकिंग यू ऑल द टाइम एंड दैट हर्ट्स यू. पास्ट को जला के फेंक दो. जो भी दिमाग में है प्लीज कॉपी में लिखो. जो चीजें जिसके दिमाग में आ रही हैं प्लीज राइट इट डाउन एंड बर्न इट. मैम एक बात मैं बताऊं, आई मीन आई वांटेड टू शेयर. हेलो. हाँ सुन रहे हैं आपको, बोलो. हाँ, तो मेरे को आज ये हुआ कि आई टोल्ड माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स की, देखो मेरा अभी मैंने जॉब छोड़ दिया है क्योंकि मेरी सैलरी ज्यादा थी और इसलिए उन लोगों ने मेरे को छोड़ने को बोला है, और जो मेरे सैलरी से भी आधे में है उसको हायर किया गया है. तो मेरे फ्रेंड ने बोला ये तो होना ही था. मैंने पूछा ये तो होना ही था, इसका मतलब क्या है? व्हाट आर यू वांटिंग टू से? उसने बोला कुछ नहीं, ये नहीं. तो मैंने खुद को सोचा, जब मैंने और डीप तरीके में सोचा तो मुझे ये समझ आया कि मेरी जो प्लानिंग है, मेरी जो लाइफ की आगे जाने का मैंने जो सोच रखा है, मेरी जो पोटेंशियल है, इसका तो उसको आइडिया ही नहीं है. He doesn't know what situation I'm going through. He just knows one part of the situation कि मैंने जॉब छोड़ दिया. So that is where he is not educated about my complete situation, or he is just a normal friend. तो उसको मेरे पूरी बात बताने की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए I did not take it. I accepted. ठीक है, ये सच है, बताया. हमें वो देखो, बहुत सिंपल सी बात है. Once it is your decision, nobody has right to point at you. You be confident what you are. मैंने 2 बार जॉब छोड़ी, दोनों बार मुझे आज भी सुनाया जाता है तुम कहीं टिकते ही नहीं हो, तुम कहीं टिकते ही नहीं हो. ठीक है, नहीं टिकती, बट ग्रो तो कर रही हूँ. उनकी नजर में नहीं कर रहे ग्रो, बट आई नो व्हाट आई एम. That's absolutely fine.
मैं इसमें कुछ एक मिनट के शेयर करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली मैं जो भी कारण से घर पे था, अभी कुछ टाइम से मेरे पापा के साथ मेरी हमेशा अनबन होती थी। पापा जो भी पॉइंट पे कहते रहते थे, आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू फील यही जो आप लोग सब कह रहे हो, फेलियर, डाउन, यार मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत सारी चीजें। आई यूज्ड टू गो थ्रू व्हाटएवर फाउट्स और डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, एंड दैट वाज नॉट हेल्पिंग। दैट डे, जैसे मोनिका कह रही है, सेल्फ लव, हीलिंग करी, मेरे एक्सरसाइजेस करी, सेल्फ लव जो मैंने अपने अंदर लिया। अभी रिसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ, आज से कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले पापा को कंप्यूटर पे कुछ कर नहीं पा रहे थे। पापा ने जो है देखा, मैंने, पापा ने बोला मुझे बता। जैसे ही उनको 2 लाइन बताई, पापा इरिटेट है, तुझे तो बताता नहीं, तू खुद कर देता है, तुझे तो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते, यू नो, ही जस्ट टोल्ड मी ब्लंटली। और पापा, तू कह रही सर्कमसाइज, पापा तो मेरे को दिन रात देख रहे हैं, पापा टोल्ड मी ब्लंटली, यार यू आर अ फेलियर, यू आर अ ब्लडी बैड टीचर, तुम्हें सिखाना नहीं आता यार, तुम बकवास आदमी है। और इतनी जोर से चिल्ला के बोले। मेरे पापा इज वेरी, ऐसे भी लाउड, यू नो, पूरा बिल्कुल मिलिट्री मैन की तरह, पूरे घर में है वो। लेकिन पता है उस दिन क्या हुआ, वही बता रहा हूँ। पहले होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, हाँ भाई ये हुआ। मैंने कहा पापा आपको कुछ भी कहना है कैसे, और बहुत प्यार से फर्मली मैंने बोला, ना चिल्लाया ना, वरना मैं लड़ लेता या मैं डिप्रेशन में था। तो ये रिएक्शन होता था मेरे। मैंने पहली बार जिंदगी में अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज करी उस दिन मैंने बोलने के बाद। मैं बोला उनको, पापा मुझे अपनी वर्थ पता है, मैं क्या हूँ मुझे पता है, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं नहीं हूँ ये मुझे पता है, और मैं बहुत अच्छा हूँ, पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। वो चीज मैंने बोली। 4 घंटे बाद पापा खुद आए, अच्छा वो क्या था बताइए जरा। मैंने दोबारा बताया, फिर बोले अरे तू तो बड़ा अच्छा बताता है। What I'm trying to tell you is, this is actual, I'm telling you, और ये मेरे साथ 2-3 बार, मोनिका से 2-3 बार हो चुका है। मैं मतलब उसके बाद तो ऐसा हुआ है, मेरे को 2 बार तो लूज मोशंस हो गए, क्योंकि मैं पापा, मेरे लिए एक बड़ा हवा था मेरे पापा, ठीक है। उनको फेस करने के बाद ना मेरे तो 2 बार पेट साफ हो गया क्योंकि मेरे कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, आई डोंट नो व्हाट, बट सच बता रहा हूँ। रीजन बीइंग कि जब मैंने अपनी ओनरशिप ले ली ना, जब मेरे को अपना कॉन्फिडेंस आ गया ना, मेरी अपनी वेल्थ मुझे पता है, किसी के बताने से नहीं है। चाहे उनको तो मेरी पूरी जिंदगी की हर सर्कमस्टांस पता है, उसके बावजूद भी आई डिडंट, you know, buy his terms, and that actually made me more stronger, and that the difference what has caused na, कि मेरी self respect is now he has started respecting who I am, and this is evident in my house. This is evident in my house today. Despite I'm not earning still today anything, dude, but मेरी self respect अपने आप घर में आ गई, जो मेरे पास थी नहीं अपने ही घर में। और ये अभी हुआ है, ये इन्हीं दिनों में हुआ है ये, मैं बता रहा हूँ। So this is once you accept yourself the way you are not. And you respect yourself the way you are not. तो उसके बाद कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Somebody tells you you're a bitch, ठीक है, तो तुम देखो, तुमने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रखा है, मेरी मर्जी। It's just a 5-letter word, that's it. You're a failure बोलते रहो, 10 बार बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? Why should I kill myself by this statement कि I am a failure? Why should I say I am a failure? I'm not a failure. I have a mission, so I'm just looking at the dream. Look at the dream. Don't look at the what people are saying. ये जो फोटो लिए ना मैंने, ये ऐसे ही नहीं उठा तुम्हारे लोगों के लिए जिन की क्वेरीज आती हैं। Why I'm showing all these things? Because one of you अपने ग्रुप में से कभी कोई चीज पॉइंट आउट आके आ जाता है ना, तो मेरे को लगता है कि people are, you know, going that way. उनको वापस ट्रैक पे लाना एक मेंटर का काम है, कि जिसके दिमाग में कोई बात है उसको वापस ट्रैक पे लाना। तो एक्सेप्ट नो वंस डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ। कोई तुम्हारी लाइफ को डिसाइड नहीं कर रहा है। डिफाइन योरसेल्फ। अगर आप कह रहे हो कि यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर। आप कह रहे हो आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। लोग तो बोलते रहेंगे, कोई भी आके कुछ भी बोलेगा आपको, आप सबकी बात मान लोगे या सबकी बात मान ली तुमने जिंदगी भर? लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वे यू आर, द वे यू आर नॉट। तुम्हारे स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस है, कुछ भी हैं, आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया द वे यू आर। द डे यू डू दैट, कोई कुछ भी कहता रहेगा, आपकी सेफ पे असर नहीं होगा। Because you know that you are the best. Respect yourself, love yourself. किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है जब आपको पता है आप क्या हो। बस देखो, ये सारे जो कार्टून्स आए हैं,
यू आर ट्रैश, यू आर विल फेल। ये आप तो हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जितने ये जो क्या नाम है हमारा आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन को दिखा दिया भैया इसका तो दिमाग ही नहीं है इस लड़के के अंदर, इसको घर में बिठा लो। लेटर आ गया था उधर से स्कूल से कि इसको घर में बिठाओ, इसका दिमाग खराब है, हम ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं रखेंगे, हमारे बाकी बच्चे भी खराब हो जाएंगे। और माँ ने उसका क्या किया था, उसकी मम्मी ने बोला था बेटे तेरा लेटर आया है। कहते मम्मा क्या लिखा है लेटर में? उसको पढ़ना भी नहीं आता था, 4 साल का बच्चा था वो, उसको पढ़ना भी नहीं आता था। तो उसकी माँ ने लिखा कि आपका बेटा जीनियस है और आपका बेटे के लेवल की पढ़ाई हमारे स्कूल में नहीं होती है, तो आपके बेटे को घर में पढ़ाओ। और उस दिन से आइंस्टाइन ने अपने आप को जीनियस माना था, और आज तक हिस्ट्री में आज तक ही इज अ लेजेंड, ही इज अ जीनियस, ही इज कॉल्ड अ जीनियस, क्योंकि माँ ने उसको कहा कि तू जीनियस है। तो यू टेल योरसेल्फ व्हाट यू आर। इफ यू टेल योरसेल्फ यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर। यू टेल योरसेल्फ यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। डिफाइन योरसेल्फ ना। लोग क्यों डिफाइन करेंगे तुम्हारे को? पाल पोस के तुमने अपने आप को बड़ा किया सिर्फ ये सुनने के लिए लोगों से। सो प्लीज लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, एंड यू आर द बेस्ट। आप जो हो वो बाकियों में नहीं है। बाकी लोग तो परवाह भी नहीं करते, तुम तो परवाह कर रहे हो कि उनकी एक, दैट शोज मानवी हाउ मच यू रिस्पेक्टेड दैट मैन। दैट इज व्हाट द हाउ, ये आपका दिल है कि आपने उस इंसान को इतनी रिस्पेक्ट दी, तो उसकी बात तुम्हें आज तक दिमाग में घूम रही है। रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने आप को दोष मत दो किसी भी चीज के लिए। वो अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए वो लोग ये कहेंगे कि आप फेलियर हो जी। That's okay. That's absolutely fine. But please respect yourself, no matter what. Okay? Yes, ma'am. Yes, you are the best. Don't worry about it. Yes, ma'am. I am the best. अब ये देखो, अब ये बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने ये चूज कर करके लेके, when a million things can bring you down, find one reason to keep you up. That is your dream. Yes, ma'am. फियर, डाउट, यू आर अ फेलियर, सोसाइटी बोलेगी, रिजेक्शन होंगे, कोई उठा के आपको बाहर कह दे नहीं तुम रिजेक्टेड हो, तुम ये हो, लोग 10 चीजें बोलेंगे, लेकिन आपने सिर्फ ऊपर देखना है, आपने नीचे चीटियां मीटियां वो फालतू की चीजें नहीं देखनी है। दे विल पुल यू डाउन बाय देयर स्टेटमेंट्स, बाय देयर व्हाटसोएवर नेगिंग, व्हाटसोएवर इट इज। बट हजारों लोग हो जाए, एपिसोड हो जाए, कुछ आपका जो दिमाग है ना सिर्फ एक गोल पे होगा, because they cannot see you being successful, so you have to make yourself successful। तो ये सब चीजें सब खत्म हो जाएंगी once you raise yourself। बाद में वो अपने आप realize करेंगे what they did। Yes, ma'am. So when million things can't bring you down, find one reason to keep you up। मैं चुन चुन के ये स्लाइड्स लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 2-3 क्वेश्चंस आए थे, उसको देखते हुए मैं ये लेके आई हूँ। प्लीज love yourself, respect yourself, you are the best the way you are। जो आपके अंदर है वो बाकी लोगों में नहीं है। आप मैजिक सेशन में बैठे हो, बाकी लोग नहीं है। आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो, बाकी लोग नहीं कर सकते। आप आसमान टच कर सकते हो, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो you are fortunate to have been into the session, you know। So please create your dream, you know, create your life accordingly। ग्रेट। सो 1 एक्टिविटी, मैजिकल टू डू लिस्ट डालो और 2 टास्क लिखो जो इमीडिएटली आज सोने से पहले आपके खत्म होने चाहिए, एंड यू विल से यस यस आई डिड इट, इट इज डन। जस्ट से इट इज डन, फटाफट से कर दो। और अपने आप को शाबाशी भी दे दो, अपने आप से शाबाशी करो। मोनिका जी एक चीज पूछना था, ये जो टू डू लिस्ट बनानी, इसका फॉर्मेट क्या होगा? जैसे पहले बनाते थे ऐसा फॉर्मेट नहीं है। आपने ऊपर लिखोगे मैजिकल टू डू लिस्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बस सिंपल। नहीं जैसे आप पहले जो थैंक यू करके बोलते थे, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आपने बस ये काम, सिर्फ काम लिखते जाना है, काम लिखते जाना है, काम लिखते जाना है, काम लिखते जाना है, काम लिखते जाना है। काम लिखने के बाद उसमें से 3 प्रायोरिटी बेसिस के काम ले लो और उनको विजुअलाइज कि ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। ग्रेट। और आप अगर अपनी विश लिस्ट में इसको लिखना चाहते हो, और आई वुड लाइक एवरीबडी
to show gratitude to yourself that आप लोग इतने fortunate हो, इतने blessed हो कि आपको magic session में, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे magic session में हो, you are here in magic session to transform your lives. So you are taking charge of your life. Please appreciate yourself for being here. आप लोग 10 काम छोड़ के या 1-1.5 घंटा मेरे पास बैठते हो, मुझे सुनते हो, एक्नॉलेज करते हो, ग्रैटिट्यूड छोड़ के. आई रियली वांट टू एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू. प्लीज एक्नॉलेज योरसेल्फ आल्सो. ये देखो, ये मैंने सेशन दोपहर को बनाया था और हर चीज एकदम से फिट हो रही है. जो आप लोग कर रहे हो ना, बिल्कुल वही ला रहा है. Gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. और आपने अगर विश में डालना है तो यू कैन राइट डाउन दिस. ये देख लो जी, आपने जो पूछा है ना वो मैंने यहाँ भी लिख दिया है. देख लो, मुझे नहीं पता था कि आप पूछ रहे हो. ये thank you, thank you, thank you. I'm so blessed and grateful to the universe that all my tasks from the magical to-do list are done in time. Thank you, thank you, thank you. I'm so blessed and grateful to the universe that I have enough. हमेशा हमें ये लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है. सुबह एक लाइन अगर आप अपने दिमाग में डाल लो उठते ही, I have enough time to complete my all tasks the whole day. You will get extra time to do. तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा. सिर्फ अपना माइंड सेट है कि टाइम नहीं है मेरे पास. हमारे पास एक तकिया कलाम बन गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है. You have ample time. You can do anything. The only thing is you have to create your mindset. Yes, I have ample time. हो गया? Yes. Okay, very good. So, thank you, thank you, thank you. I'm so blessed and grateful to the universe that all my members of Magic Group are sharing channel link for subscription and liking all the videos and sharing their experience in the channel of divine blessings. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And today's assignment is write down 10 blessings. The magical to-do list आपने लिखनी है, कैपिटल लेटर में लिखना है. नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने आपके पेंडिंग काम है, जो आप फ्यूचर में भी करना चाहते हो, जो पिछले से चलते आ रहे हैं, अभी भी पेंडिंग है, प्लीज राइट डाउन. कि आपने अलमारी साफ करनी है, आपने ये काम नहीं हो रहा, आपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने हैं, ये काम नहीं हो रहा, आपका ये काम नहीं हो रहा, वो सब काम लिखोगे, सब काम लिखोगे. And आप believe नहीं करोगे, this is a magic list, which means when you start visualizing, कब क्या काम हो जाएगा, आप खुद को नहीं समझ आएगा कि ये क्या हुआ. आप एक काम करते जाओगे, आपके 2-4 काम साथ हो जाएंगे. That is the magic. मोनिका, पहले तो ये बताओ, आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी अलमारी साफ है? हाँ, क्योंकि मेरी अलमारी साफ नहीं. Mostly that is the last priority work that is to be done, you know. पिछले 1 हफ्ते से हर दिन लिस्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं हुई है. Today you write it down. You write it down. It will happen automatically. मैं मजाक नहीं कर रही. अरे मैं समझ रहा हूँ. Magical sessions, it will be done magically, automatically. You will spend at least 1 minute on each. Imagine the work is done and gratitude in return. और gratitude छोड़ के thank you so much, मेरा ये काम हो गया. आपने visualize किया और आपने कहा yes, it is done. Thank you, thank you, thank you so much, God, universe, that this task is done. Thank you so much. That kind of gratitude you need to show. And at night, magic rock ritual you have to do. Okay, thank you so much. It was a wonderful session. Anybody would like to say anything? Just lots of love and gratitude to everyone in this group for keeping the magic alive. And thank you, thank you, and thank you so much, Monica. Thank you. And keeping thank you so much, each of you. Thank you, thank you, thank you. Dr. JP, your work is done.
ग्रेट. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. बाय बाय. टेक केयर. और जिसने चेक नहीं बनाया प्लीज चेक बना लो. बाय. गुड नाइट मैम. गुड नाइट. Good night all of you. Bye. Thank you.